SYBA यानी कि 14 स्टैंडर्ड किस चीज के लिए? जीएसटी के लिए। अंडर व्हाट हेडिंग? ओपन इलेक्टिव, राइट? सो चैप्टर नंबर 1 इज डन। ऑफलाइन क्लासेस में ऑल द 5 चैप्टर्स आर डन, बट जस्ट फॉर द बैकअप ऑफ योर एग्जाम यू कैन स्टडी वेल एंड यू कैन गिव योर बेस्ट इन द एग्जाम्स। हम लोग इसको बैकअप में रख रहे हैं, राइट? चैप्टर नंबर 2 is regarding what? Registration, tax rate, compliances, requirement and returns under composition scheme. We have already seen who is eligible for composition scheme and what are the conditions for that. Correct? Now comes what is the registration process. चलो, I want कि मुझे composition scheme में रजिस्टर करना है, तो क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, कहाँ भरना पड़ेगा, कैसे भरना पड़ेगा, राइट? आई वॉन्ट कि मुझे कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलना है, तो भी तो मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, राइट? So those formalities, the legal requirement or the steps to be taken to go in composition scheme or come out of the composition scheme is nothing but this chapter. Okay, before moving ahead, let us remember one thing कि हमें एग्जाम्स में ऐसे बुलेट पॉइंट्स लिखने नहीं है. These are just for your remembrance, these are just for your understanding. I have cut short the theory into points so that you can remember, you can understand. आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन जरूर करना जहां जहां पॉसिबल है वहां पे. अभी जैसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन का पॉइंट एक दिख रहा है मुझे सामने, वो तो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट ही है, तो उधर कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, फीचर्स है, राइट? दोज यू नीड टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इज समथिंग वेरी मच इजी एंड नॉर्मल थिंग विच वी ऑलरेडी नो कि इसमें क्या होता है, पूरे चैप्टर का समरी. करेक्ट? So once a taxpayer determines eligibility of the composition scheme under the goods and service tax, that is GST framework, the next step involves under the procedure aspect of registration, applicable tax rate, compliance is responsibility, what are the conditions that he need to fulfill, what are the limitations that he cannot cross, right? And return filing requirements, right? What are the documents required to file the returns. This chapter provides a structured explanation of this process in order to support academic understanding as well as the practical clarity. मैंने कोशिश की है मेरी तरफ से कि आपको अलग अलग प्रोसीजर्स एकदम डिटेल में, लेकिन शॉर्ट, समझ में डिटेल में आ जाएगा लेकिन दिखने में बहुत शॉर्ट होगा, वैसे किया है. स्मार्ट वर्क थोड़ा सा. The primary goal is to enable students and practitioners to interpret compliance documentation, follow legal mandates, and differentiate between regular and composition taxpayer. Right? Registration under composition scheme. What you have to do? तो पहली चीज, you have to fresh registration की condition क्या है? Taxpayer newly entering the GST system and wishing to operate directly under composition scheme. नया नया बिजनेस शुरू किया, आपको पता है कि उतना किधर जाने वाला है, मार कंपोजिशन, राइट? तो अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन जीएसटी पोर्टल थ्रू फॉर्म नंबर GST REG1, that is GST registration form number 1. Select the option for composition scheme during the registration. Provide relevant business and personal information. अब बिजनेस के इंफॉर्मेशन में क्या होगा? बिजनेस का नाम, बिजनेस का रजिस्टर एड्रेस, राइट? पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या होगा? आपका नाम, आपका फोटो आईडी, रेसिडेंशियल आईडी, बैंक स्टेटमेंट. बिकॉज आप ऑनलाइन पे करोगे तो ऑब्वियसली यू विल नीड ऑल दोस थिंग्स. करेक्ट? प्रोवाइड रेलेवेंट बिजनेस एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल दे हैव सेड व्हाट? यूज एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स सच एज पैन, आधार, बैंक डिटेल्स एंड प्रूफ ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस. ओके, तुरंत हो जाएगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए रोकेगी आपका फॉर्म. Upon approval, the GST authority issues what? GSTIN, that is GST identification number, and recognizes the applicant as composition tax payable, right, person, या composition taxable person. Migration from regular to GST. आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो और आपको लग रहा है यार नहीं बिजनेस चल रहा है मेरा, मेरे को इधर कंपोजिशन में बेनिफिट है, चल मैं अपने आप को कन्वर्ट कर देता हूँ. Both the options are there. Newly started business, new registration, already a GST tax payer but want to convert into composition, right? So what he will do? Existing GST registered taxable person may opt for composition scheme. How? By filing form GST CMP 2, that is GST composition scheme form number 2.
okay, intimation to opt. Then form number GST ITC 03, क्योंकि आप ITC ले नहीं सकते ना, तो वो भी ITC का फॉर्म नंबर 3। याद रखना ये सारे फॉर्म्स, क्योंकि हम लोग को मॉड्यूल 2 में इनको स्टडी करना है, जो कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे ही जाने वाला है। वी कैन नॉट फिल द फॉर्म और वी कैन नॉट ब्रिंग द फॉर्म एज इट इज, मुझे कॉपी मिली नहीं है प्रॉपर। ओके, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ एप्लीकेबल। This conversion is typically permitted at the beginning of the financial year, ensuring consistency in tax structure throughout the assessment period. Okay. Key documents required: एक पैन कार्ड, क्यों? आपका फोटो आइडेंटिटी। आधार कार्ड, क्यों? आपने लिंक किया है कि नहीं सब कुछ, वो जानने के लिए, सो पर्पस। बैंक अकाउंट प्रूफ, क्यों? आप पेमेंट ही ऑनलाइन करने वाले हो तो ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, एक्सक्यूज मी, बराबर। ऑपरेशनल वैलिडिटी, एड्रेस प्रूफ आप एक्चुअली हो या सिर्फ ऑनलाइन दिख रहे हो, करेक्ट। एस्टेब्लिशमेंट कंफर्मेशन, बिजनेस कंस्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, पार्टनरशिप चल रही है तो पार्टनरशिप डीड। Many documents are there which shows that your business exists not on paper only but physically also. Okay, registration must be supported with accurate information to avoid legal objection or cancellation. ठीक है। Tax rate applicable, so we have already seen, if you are a manufacturer or a normal dealer, it's 1% on what? On the turnover. If you are running a restaurant without alcohol, your percentage is how much? 5% on overall turnover. If you are a service provider, then the tax rate is how much? 6%, but your turnover limit is how much? 50 lakhs. Done? Okay. These rates are intentionally lower than standard GST rates to reduce financial pressure on small taxpayer. ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन। वेरी गुड, बराबर है। टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम मस्ट एडहर द फॉलोइंग गाइडलाइंस। 1, it must be on the gross turnover, not on each point, बराबर है। it must be paid quarterly, यानी कि नहीं 3 महीना, ओके 4 क्वार्टर होगा। बस ऐसे कर दिया तो जरा बदल जाता है इशारा आपका, और ऐसे कर दिया तो 4 बार 3-3 महीने में पे करेंगे। पेमेंट इज मेड थ्रू जीएसटी पोर्टल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यस, देर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट अलाउड, बराबर। तो वो 3 फॉर्म नंबर जो था वो यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला नहीं है, आपने वापस ले लिया है। Therefore, the entire liability must be settled in cash. Okay. Compliance is requirement. अच्छा सर क्या है ये ITC? तो आप अपने चैनल पे जाके इनडायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर 6 उसके वीडियोस देख सकते हो। जीएसटी का बहुत बड़ा आइडिया आप लोग को वहां पे आ जाएगा। ठीक है। Taxpayer opting for scheme must comply with several operational responsibilities mandated by law. This ensures transparency and accountability. 2.6.1, what is it? Prohibition on tax collection. Can you collect tax from the customer? No. Can you take the benefit of ITC, that is input tax credit? No. Right? Can you go on online business? No. Can you trade in 2 states? No. ये सब रखना पड़ेगा। बिल पे लिख के देना पड़ेगा, यस, कि आई एम अ कंपोजिशन टैक्स पेयर एंड आई कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, बराबर। तो आएगा वो चीज है। अ कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर। द सेलिंग प्राइस शुड बी इंक्लूसिव विदाउट सेपरेट टैक्स इंडिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन एंड बिलिंग, issue bill of supply instead of tax invoice. Prohibited from issuing invoice that allows ITC to the recipient. Must display signage at business location setting. Composition taxable person, बोर्ड पे लिखना है। Mandatory mention on bills क्या होगा? Tax paid in accordance with section 10 of CGST Act 2017. yes, इसी का मतलब क्या है? आप कस्टमर से टैक्स ले सकते नहीं हो, राइट। अब माइक कभी कभी बंद पड़ जाता है, अच्छा वो याद आया, देखने के लिए चालू है। रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस ऑपरेशंस, जैसे पहले ही बोल दिया है, कैन नॉट एंगेज इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, कैन नॉट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड कैन नॉट एक्ट एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। यस,
Returns filing requirement, so what he need is CMP 8 composition scheme 8, that is quarterly फॉर्म है उसका 3 महीने का पे करने के लिए. स्टेटमेंट कम चलान फॉर सेल्फ असेस टैक्स. GSTR 4 आपको एनुअल रिटर्न भी फाइल करने हैं. GSTR 9 जो डिसकंटिन्यू हो चुका है अभी, पहले एनुअल रिटर्न्स के लिए कंपोजिशन टैक्स पेयर को आता था. ओके. ट्रांजिशन फ्रॉम कंपोजिशन टू रेगुलर. यार मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं 1.5 करोड़ का लिमिट क्रॉस करने वाला हूं, तो क्या मैं कंपोजिशन स्कीम में रहने वाला हूं? नो. तो मुझे अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेगुलर में. दैट इज व्हाट ट्रांजिशन इज. ट्रांजिशन बिकम्स नेसेसरी व्हेन टर्नओवर exceeds द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. टैक्स पेयर नो लॉन्गर मीट्स द एलिजिबल कंडीशन. आपने दारू बेचना शुरू कर दिया होटल में, या आपने गुजरात के साथ या दूसरे स्टेट के साथ डील करना शुरू कर दिया, बराबर है. द बिजनेस विशेस टू अवेल ITC और एक्सपांड ऑपरेशनल जोग्राफिकली. प्रोसीजर क्या है उसके लिए? एक, फाइल फॉर्म GST CMP 4 टू विड्रॉ. उधर क्या था? 3, टू रजिस्टर एज कंपोजिशन, विड्रॉ करना है फॉर्म 4. बिगिन इशू रेगुलर टैक्स इनवॉइसेस, तो बिल ऑफ सप्लाई बंद कर देंगे, रेगुलर इनवॉइस टैक्स देना शुरू कर देंगे, बराबर है. टैक्स इनवॉइसेस. ITC क्रेडिट एलिजिबल रिज्यूम्स सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ फाइलिंग ITC 1. ओके, तो आप अभी ITC का बेनिफिट ले सकते हो. This transition must be executed with accordance to avoid legal disputes. Penalties and consequences for non-compliances. अगर आप compliances पूरे नहीं कर रहे हो तो penalties होगी, हाँ होगी. जेल होगी, हाँ होगी. जो भी पेनल्टी है वो नहीं पे किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यस पे करना पड़ेगा. ओके. If taxpayer violates provision, consequences may include demand of tax at regular rates, interest and penalties, cancellation of registration under composition scheme, classification as regular tax payable retrospectively resulting in tax arrears. जब से आपने लिमिट क्रॉस किया है तब से ईयर एंड तक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा रेगुलर रेट पे. पेनल्टीज भी हो सकती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हो सकता है. क्लियर? यस. कंपैरेटिव एनालिसिस, तो टैक्स रेट कंपोजिशन में कम है, उधर नॉर्मल ज्यादा है. 5 to 12% हो गया है रिसेंटली, आपके सिलेबस के हिसाब से 28% है. ओके, एक्चुअल में 12% है. इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपोजिशन में नॉट अलाउड, रेगुलर में अलाउड. इनवॉइस, यहाँ पे आप बिल ऑफ सप्लाई देने वाले हो, वहाँ पे आप टैक्स इनवॉइस दे रहे हो. रिटर्न्स फाइलिंग CMP 8, वहाँ पे GSTR 1, 3B एंड एनुअल रिटर्न यहाँ पे. ओके. टारगेट यूजर माइक्रो एंड स्मॉल, वहाँ पे बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस. तो कंक्लूजन आपको समझ में आ जाएगा. ये मैंने MCQs दिए हुए हैं, मैंने उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसके भी आंसर्स दिए हुए, आपको ट्रू फॉल्स दिए हुए, उसके भी आंसर्स दिए हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं. और बता दूं कि यही एग्जाम में आने वाला नहीं है, ऐसा आएगा. ओके. So start preparing yourself for the final exams also. They will be approaching very soon by March mid or March ending. Done? I hope I am clear with the chapter 2 also. Other colleges students, if you need this PDF, please WhatsApp me. I will send you. And please comment how you are feeling. Okay.